Hello students, today we will discuss about the keywords and questions of your chapter, that is fiber to fabric. Okay, so let's start the keywords one by one from your notebook, from your textbooks. The first keywords is cocoons. Cocoons क्या होता है? ठीक है, तो we already have discussed about cocoons. ठीक है, cocoons is a silk fibers which is covered by caterpillars for further developments into pupa. Okay, the covering fibers, the covering silk fibers is known as cocoons. Okay, the covering silk fibers by caterpillars for further developments of into pupa is known as cocoons. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लीस. तो फ्लीस क्या है? फ्लीस इज अ कोट ऑफ वूल फ्रॉम द वूल यील्डिंग एनिमल्स. ओके, इट इज अ कोट ऑफ वूल फ्रॉम द वूल यील्डिंग एनिमल्स अलोंग विद द अपर मोस्ट स्किन. ठीक है, द अपर मोस्ट स्किन इज डेड. नेक्स्ट है रीलिंग. रीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून्स. ओके, तो रीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग थ्रेड निकालते हैं, यानी कि हम लोग थ्रेड निकालते हैं किससे? कोकून से. ठीक है, तो रीलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून्स. ओके, नेक्स्ट इज स्कॉरिंग. स्कॉरिंग इज द सेकेंड स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस. ओके, तो क्या होता है? Scouring is the second steps of obtaining wool from silks. In this process, we can remove the dust, dirt, and sweat dried from the fleece. Okay. Now the next one is sericulture. Sericulture is the rearing of silkworm for obtaining the silk is known as sericulture. Okay. Next one is shearing. What is shearing? Shearing is the process. Shearing is the process, or we can say shearing is the first steps of obtaining wool from sheep. ठीक है, it is in these steps we cut the fleece of the the hair of the sheep. Okay. Next है silk moth. What is silk moth? Silk moth is an insect. ठीक है, silk moth is an insect which resembles butterfly. Okay, which resembles butterfly. It is developed by the various processes. Okay. Next is, what is silkworm? Okay, silkworm is a caterpillar or larva of silk moth. Okay, silk moth यानी कि silkworm क्या है? It is a larva or caterpillar of silk moth by which we obtain silk. Okay, it weaves a net to cover itself for the further development, which is known as cocoons. ठीक है, next one is, what is sorting? Sorting is a process of obtaining, it is the third process of obtaining wool from silk. Okay, in this process we separate out the fleece according to their size, according to their color and other characteristics, is known as sorting. Okay, so I hope keywords is complete. If you have any doubts, you can ask me by WhatsApp. Okay, next we will discuss about questions right now. The first question is, you must be familiar with the following nursery rhymes. Nursery में आप लोगों ने rhymes पढ़ा होगा. That is the Baba 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 black sheep have you any wool. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, which part of the black sheep have wool? किस black sheep के किस पार्ट में wool होता है? The hair of the black sheep have wool. ठीक है, next one is, Mary had a little lamb whose fleece was white and snow. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन किया जा रहा है, what is meant by the white fleece of the lamb? White fleece means the fleece of hair of the lamb. Okay. Next question is, the silkworm is caterpillar, larva. ठीक है, तो silkworm क्या है? caterpillar है या larva है? ठीक है, तो silkworm caterpillar भी है और larva भी है, तो यानी कि both and भी होगा इसका. ठीक है, next question is, which of the following does not yield wool? इसमें से कौन सा जो है जानवर से हमें ऊन नहीं मिलता?
याक से मिलता है, कैमल से मिलता है, गॉट से मिलता है, लेकिन वुली डॉग से नहीं मिलता, तो वुली डॉग इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इन तीनों टर्म से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले रियरिंग। रियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुक आफ्टर द एनिमल्स। ओके, रियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं? जानवरों का देखभाल करते हैं। ठीक है, लुक आफ्टर द एनिमल्स। ओके, वी प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर टू द एनिमल्स। ओके, दिस इज नोन एज रियरिंग। नेक्स्ट इज शेयरिंग। व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ गेटिंग wool from sheep। ओके, in shearings we cuts the fleece of the sheep। okay, next is sericulture। Sericulture is the rearing of silkworm for obtaining silk from it is known as sericulture। okay, next one is given below is a sequences of steps in the processing of wool which are the missing steps at them। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए shearing was the first step, second step was scouring, third was sorting, फोर्थ वाज रीलिंग भी हो सकता है, डाइंग भी हो सकता है, कलरिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिंग एंड आफ्टर दैट स्पिनिंग इनटू यार्न, स्पिनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेक स्केच ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोड्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से डायरेक्टली जो रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसमें फिगर्स में? तो हम इसमें कोकुन्स बना देंगे। ठीक है, ये फिगर बनाएंगे आप कैटरपिलर्स का, उसके बाद कोकुन्स का फिगर बनाएंगे। ठीक है, कैटरपिलर्स अपने आप को कवर कर लेता है कोकुन से, तो दिस फिगर एंड दिस फिगर्स वुड बी स्केच्ड इन योर नोटबुक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Out of which of the following are the two terms related to silk productions? Okay, the silk production involves the cultivation of mulberry leaves and reeling silkworm। देखिए सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर से द rearing of silkworm for obtaining silks, यानी कि सेरिकल्चर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में। फ्लोरिकल्चर ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लोरिकल्चर मतलब सिल्क से रिलेटेड कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका मोरिकल्चर। तो मोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स और ट्रीज। ठीक है, दिस नोन एज मोरिकल्चर्स। तो मोरिकल्चर्स और सेरिकल्चर्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो देखिए सबसे पहले स्कॉरिंग है। तो स्कॉरिंग का मतलब क्या है? कि स्कॉरिंग मतलब कि रिमूव्स आउट डर्ट फ्रॉम द फ्लेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है? तो यहाँ पे देखिए क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ठीक है, यानी कि कटा हुआ स्किन को, कटा हुआ फ्लेश को हम लोग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है, तो यानी स्कॉरिंग का क्लीनिंग शेयर्ड स्किन हो जाएगा। मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स किससे रिलेटेड है? तो देखते हैं मलबरी लीव फूड्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स का ये फूड होता है। नेक्स्ट है याक। तो याक क्या करता है? ठीक है, तो याक्स वूल यील्डिंग एनिमल्स है, उससे हमें वूल मिलता है। ठीक है, कोकुन्स नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कोकुन्स क्या करता है? यील्ड सिल्क फाइबर्स। कोकुन्स से हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, तो यानी कि 1 का ई हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा और 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट given below is a crosswords puzzles based on the lessons. Use hints to fill in the blank space with letters that complete the words। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है hints इसका? through washings। ठीक है, तो देखिए 1 का D का 1, तो D का 1 यहाँ पे है, तो through washings में क्या हो जाएगा? वॉशिंग किसको करते? वॉशिंग किस प्रोसेस में करते थे? तो स्कॉरिंग में करते थे। ठीक है, तो स्क्रॉ हो जाएगा यहाँ पे SC इसको एक मिनट, SCOUR स्कॉर। ठीक है, स्कॉरिंग नहीं लिखेंगे, स्कॉर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, SCOUR स्कॉर। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर। ठीक है, तो 2 एनिमल फाइबर्स कौन सा है? तो ऊन होता है ना एनिमल फाइबर्स।
या सिल्क या उल, SIL के सिल्क लिख देंगे या उल लिख देंगे, जो भी है। लॉन्ग थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होता है? तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि 3 का क्या है, D का 3, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको फाइबर्स हो जाएगा, FIBRES, फाइबर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, फाइबर ही होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है किप वार्म, तो किप वार्म कौन रखता है? उल रखता है, तो 1 का A, WOOL, उल। इट्स लीव्स आर ईटेन बाय सिल्कवर्म्स, किसका लीव सिल्कवर्म्स खाता है? तो मलबड़ी का खाता है, मलबड़ी लीव्स खाता है, तो यहाँ पे मलबड़ी हो जाएगा, MULBERRY, मलबड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है हैचेस एग्स, हैचेस फ्रॉम एग्स टू मोट, ठीक है। तो क्या कौन हैच करता है? तो कैटरपिलर करता है, CATERPILLAR, कैटरपिलर, ओके। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट है क्वेश्चन आंसर्स एंड कीवर्ड्स में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। योर 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, साइंस का, ठीक है। अगर 3 चैप्टर्स में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा, फिर फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा। ओके, थैंक यू।